Hello, everyone. Welcome to our uh, previous year GATE question solution series. So, today we'll have the part 7 of engineering hydrology and we'll solve the question from runoff and hydrograph. As you are seeing, we are solving it from part 1 to part 7. Till now, we have solved around 30 to 31 questions, 31 around questions we have solved. And as you can see, gate mein there has been every year at least one question has been asked from this particular topic, that is runoff and hydrograph. And there has been a lot of questions that has been asked from this particular topic, and that is why we are stressing this particular topic. And if you see, the questions are very easy, the concepts are more or less same, बट व्हाट इट नीड्स इज द प्रैक्टिस, क्योंकि गेट में आपको यू हैव टू डू इट इंस्टेंटली, यू कैन नॉट थिंक फॉर लॉन्ग, you will not have any calculator, right? So it has to be instinctive, very fast you have to solve this question. So keep on practicing so that we can crack the gate of 2025. And if you are targeting for year in, I mean gate in any other year, then also we should always focus on this particular topic, क्योंकि यहाँ से एक question is kind of mandatory. Okay. And if you are liking our effort, if you are liking the way we are discussing, we are solving, then please consider supporting us by at least liking this video, and please subscribe to our channel so that uh, you can see whenever we are uploading any video. Please click the bell icon, and if you have any comment, if you have any suggestion, if there is any particular concept you don't understand, then please do write in the comment section. We'll try our level best to clear your concept, because we believe in engineering colleges, you are fed information, a lot of information you are fed, but you are not uh, the concepts are not clarified to you, you don't understand, you are not being explained the concept properly, है ना? इंजीनियरिंग का टाइम फ्रेम बहुत कम है, बहुत सारा सब्जेक्ट्स होता है उसमें। सो क्या होता है, आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया जाता है, टेक्निक सिखाया जाता है, कैसे करना है, कैसे, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड इट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, इफ यू डोंट रियलाइज इट, देन देयर इज नो पॉइंट रियली, है ना? किसी भी इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करने को एडुकेशन नहीं कहते हैं। एडुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ perfection in men, already in men. So given as told by Swami Vivekananda, right? What is education? Education is the manifestation of perfection already in men. आप में, आप already, you know all these things already, we just need to point it out to you. But because of the education system, हमारा education system अभी जिस stage में है, it's really very difficult, we are in a very bad stage education wise. So this is our effort, so that you can learn the topics, understand the concepts, and clear any question, any exams, not only gate. Gate standardized exam है, इसलिए हम लोग gate को use करते हैं. So let's see, without going much into the detail. So first question, again unit hydrograph एक दिया हुआ है for a catchment. What is they are saying? What would be the maximum ordinate of S curve derived from the hydrograph? See, hydrograph is back. तो 4 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ आपको दिया हुआ है. कैलकुलेट द मैक्सिमम ऑर्डिनेट ऑफ ए एस कर्व. क्या आपको दे आर सेइंग टू फर्स्ट ड्रॉ द एस कर्व एंड देन कैलकुलेट द पीक. ठीक है, 4 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ है और टाइम्स डिफरेंस कितना है यूनिट हाइड्रोग्राफ में? इट्स 2 आवर्स.
तो इफ दिस टू आर नॉट सेम, यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो ड्यूरेशन है और ये जो ड्यूरेशन है, इफ इट इज नॉट सेम, सो हाउ वी कैन ड्रॉ द एस कर्व? वन वे इज टू, जैसे आप जानते हैं कि लैग करते जाओ, 2-2 आवर का ड्यूरेशन में गो ऑन लैगिंग इट, इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम. दिस इज द इजिएस्ट वे और द फंडामेंटल way to draw a S curve. क्या है? First you log it for 2 hours, then again for 2 hours, then again for 2 hours. तब तक आप करते जाओ जब तक आपको एक कांस्टेंट डिस्चार्ज ना मिले, है ना? पहले 2 घंटा लैग करो, नेक्स्ट स्टेप में फिर से उसको और 2 घंटा लैग करो, नेक्स्ट उसमें उसको और 2 घंटा लैग करो. इट्स लाइक दिस. देर इज अनदर वे और ए शॉर्टर वे. वो क्या है? अगर यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो ड्यूरेशन है वो ये टाइम ड्यूरेशन का इक्वल ना हो, राइट? if it is or equal ना हो, if it is not an integer or not equal, integer means 1 2 3 4, ये 4 hours का है, ये 2 hours का है, that means it is uh, this value divided by this value is 0.5, not an integer. तो हमें क्या करना है? The method is what we'll do, we'll just write the first one 0, second one also will keep the same 0.6, right? Then what we'll do, we'll add 0 with this one, so it will be 3.1. ठीक है? Then next add 0.6 with the this one 10, so it will be 10.6. ठीक है? So next 3.1 will be added with 13, so 16.1. ठीक है? Then 10.6 will be added with 9, right? So it will be 19.6, right? 16.1 will be added with 5, it will be 21.1. 19.6 will be added with 2, 21.6, with 0.7, right? 21.8. ठीक है? This 21.9. ठीक है? And then this, so this will be 22, sorry, this will be 22, and then this it will be 22. So as you can see, हम लोगों का जो इक्विवेलेंट डिस्चार्ज है that is 22. Now this is your S curve. So what is the peak discharge? Peak discharge is 22. ये था solution. अब S curve क्या होता है? What is an S curve? S curve क्या होता है? Suppose I have a unit hydrograph. ठीक है? We know कि suppose ये एक 2 घंटे का, एक 1 hour का यूनिट हाइड्रोग्राफ है. किसी जगह पे 2 घंटे का रेनफॉल हो गया, है ना? किसी जगह पे सपोज 2 घंटे का रेनफॉल हो गया. नाउ फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट कि 2 घंटे के लिए डिस्चार्ज कितना होगा. उसके लिए एज इफ यू हैव गॉन थ्रू योर टेक्स्ट बुक्स, वी हैव ए अजम्पशन जिसको कहते हैं टाइम इंडिफरेंस. तो 1 घंटे में सपोज 12 से 1 बजे तक जितना रेनफॉल हुआ, अगर 1 से 2 बजे तक भी रेनफॉल होता है तो जो हाइड्रोग्राफ प्रोड्यूस होगा वो सेम ही है. टाइम इनवेरियंस कहते हैं इसको. तो हम क्या करेंगे, 2 घंटे का जो अगर रेनफॉल हो, सपोज यहाँ पे 10 टू 11 रेनफॉल हुआ है, उसके वजह से दिस इज द हाइड्रोग्राफ. 11 टू 12 भी रेनफॉल हुआ है, तो इस हाइड्रोग्राफ को विल शिफ्टेड बाय लाइक दिस. एंड ये दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो जो हम लोगों का डिस्चार्ज होगा, जो हाइड्रोग्राफ बनेगा, दिस विल बी द डिस्चार्ज फॉर द 10 टू 12 आवर्स, 2 घंटे के रेनफॉल की वजह से. दिस इज द कॉन्सेप्ट. तो 10 से 11 की वजह से एक हाइड्रोग्राफ बन गया. ठीक है? 10 से 12 की वजह से एक बन गया, और 11 से 1 की वजह से एक सेम यूनिट हाइड्रोग्राफ बन गया. तो 10 से 1 की वजह से जो हाइड्रोग्राफ बनेगा, तो डिस्चार्ज बनेगा, वो है दिस प्लस दिस, ये प्लस ये. दोनों को अगर हम ऐड करते जाएंगे, दोनों कोऑर्डिनेट को, तो क्या होगा, इसके साथ ये वाला ऐड हो जाएगा, दिस वैल्यू, है ना? ऐसे करके दिस विल बी योर रिजल्टिंग हाइड्रोग्राफ. एस कर्व अब क्या होता है? अब
मल्टीपल इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ को आप ऐड करते जाओ, तो क्या होगा, ये ऐड होते होते फाइनली इट विल बी समथिंग लाइक दिस, है ना। एक्चुअली द शेप ऐसा होता है, लाइक एस। ठीक है, ये कैसे जनरेट होता है, इफ यू गो ऑन एडिंग अप एन नंबर ऑफ हाइड्रोग्राफ्स, ठीक है, सबको अगर ऐड करते जाएंगे तो दिस विल बी जनरेटेड, दिस इज व्हाट एस कर्व इज। तो एस कर्व फाइंड आउट करने का तरीका भी वही है एक्चुअली, जैसे मैंने बताया 0, 2, 4, 6, 8 दिया हुआ है, सपोज 0, 0.6, 3.1, 10, 13, है ना। lag it by 2 hours, so it will be 0, this will be 0.6, this will be 3.1, this will be 10. Once again lag it by another 2 hours, so this will be 0, this will be 0.6, this will be 3.1, again lag it, तब तक आप लैग करते जाओ जब तक आपको एक कांस्टेंट वैल्यू ना मिले, दैट मींस 22 आपको ना मिले। सो यू कैन दिस इज द फंडामेंटल मेथड फॉर कैलकुलेशन ऑफ एस कर्व, राइट, बट दिस इज योर शॉर्टकट। ओके, सो आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। अगर आपको कोई क्वेश्चन है प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेरी। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, देयर इज ए यूनिट हाइड्रोग्राफ, सॉरी डीआरएच इज गिवन टू यू, 5 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस के लिए डीआरएच इज गिवन। व्हाट इज रेनफॉल एक्सेस, नथिंग बट रन ऑफ। तो 5 सेंटीमीटर के लिए ये है आपका डीआरएच, ठीक है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ कैचमेंट। लास्ट वीडियो में वी हैव सॉल्व्ड अ सिमिलर प्रॉब्लम, क्या है कि डीआरएच का जो एरिया है, इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोगों ने लास्ट वीडियो में वी हैव सॉल्व्ड और वी हैव डिस्कस्ड। तो डीआरएच का जो एरिया है, ये जो डीआरएच है इसका जो एरिया है, व्हाट इज हाफ इनटू व्हाट इज द पीक डिस्चार्ज 1, टाइम क्या है 6 आवर्स इनटू 3600, है ना। दिस इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ रिजल्टिंग फ्रॉम द कैचमेंट। अब कैचमेंट का वॉल्यूम क्या होगा, कैचमेंट का एरिया मल्टीप्लाइड बाय रन ऑफ का डेप्थ, है ना। अगर एक बाल्टी है तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन दिस बकेट, एरिया ऑफ द बकेट मल्टीप्लाइड बाय द हाइट ऑफ वाटर। कैचमेंट के लिए भी सेम ही होता है। सो व्हाट इज द डेप्थ, 5 डिवाइडेड बाय 100, सेंटीमीटर में है, वी आर कन्वर्टिंग इट इनटू मीटर, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द कैचमेंट और एरिया ऑफ द बकेट, ठीक है, एंड यू कैलकुलेट द एरिया। सो द एरिया विल बी what? So I will not solve this. Please write in the comment box what is the area that you are getting. Okay. So this I am leaving here, and the answer please write in the comment box. Please write in the comment box. Okay. Please write in the comment box what is the area that you are getting. Okay. Oh, and once again, they're asking in terms of hectares. So keep it in mind. Okay. So please solve this and write what will be the area in the comment box. Next, see, there is a ordinate of 1 hour unit hydrograph at 60 minutes interval. So more or less same questions. 60 minute intervals, that means 1 घंटे के interval में एक DRH, एक unit hydrograph दिया हुआ है. 1, 2, so let us write 0, 0, 3, 12, 8, 6, 3, ये है 0. ठीक है, फाइन. अब वो सेम कैचमेंट में एक 4 सेंटीमीटर एक्सेस रेनफॉल ऑकर्ड फ्रॉम 10 AM, 4 घंटे का रेनफॉल हुआ है, ठीक है, सॉरी 2 आवर का स्टॉर्म हुआ है, नॉट 4 आवर्स, 2 आवर का स्टॉर्म हुआ है, और आर का वैल्यू दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर.
ये है यूनिट हाइड्रोग्राफ, दिस इज टाइम, दिस इज क्यू, दिस इज यूनिट हाइड्रोग्राफ। क्या कैलकुलेट करना है? यू हैव टू कैलकुलेट कंसिडरिंग कांस्टेंट बेस फ्लो दिया हुआ है। यू हैव टू कैलकुलेट कि द फ्लो इन द रिवर एट 1 PM, 10 बजे रेनफॉल हुआ है 2 घंटे का, ठीक है। व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? यू हैव टू कैलकुलेट द डिस्चार्ज इन अ रिवर। इन अ रिवर क्यों? क्योंकि पूरे कैचमेंट में जो रेनफॉल हो रहा है वो एक सर्टेन रिवर पे आ रहा है। यू हैव टू कैलकुलेट द रेनफॉल एट 1 PM। सो 10 AM में रेनफॉल हुआ है, 11, 12, 1 PM। दैट मीन्स ये 3 आवर इस टाइम में आपका जो डिस्चार्ज है वो वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये आपका डीआरएच जो है 1 आवर का डीआरएच है। रेनफॉल जो हुआ है वो दैट इज ऑफ 2 आवर स्टॉर्म, है ना। तो फर्स्ट थिंग वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लैग इट बाय, वी हैव टू लैग इट बाय 2 आवर्स, राइट। सो 2 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ हुआ है, सॉरी 1 आवर का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, ठीक है। 2 आवर का स्टॉर्म हुआ है, तो वी हैव टू लैग इट। फर्स्ट लैग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू लैग इट बाय not 1 hour, 2 hours, sorry 1 hour, 1 hour we have to lag it, ठीक है। 1 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ है, हमें 2 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, तो वी हैव टू लैग इट बाय 1 hour। सो this will be 0, it's 3, 12 और बाकी नहीं चाहिए हमें। सो व्हाट विल बी द क्यू पीक? क्यू पीक इज 30 मीटर क्यूब पर सेकेंड। रन ऑफ क्या है? 2 सेंटीमीटर, है ना। दिस इज 1 सेंटीमीटर, ड्यू टू 1 सेंटीमीटर रन ऑफ, दिस इज ड्यू टू 1 सेंटीमीटर रन ऑफ, right? So what will be the unit hydrograph for 2 hours duration? ये है यूनिट हाइड्रोग्राफ 1 आवर ड्यूरेशन। यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर 2 आवर ड्यूरेशन क्या होगा? 30 डिवाइडेड बाय 2, सो 15 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये है 2 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ का डिस्चार्ज एट 1 PM, ठीक है। सो यूनिट हाइड्रोग्राफ से डीआरएच हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस 15 मल्टीप्लाइड बाय रन ऑफ। व्हाट इज द रन ऑफ? रन ऑफ इज 4 सेंटीमीटर, है ना, राइट। Okay. Oh, sorry. 20. This is not 30. 20. Sorry. So this will be 10. This is going to be 10. This will be 40. फ्लड हाइड्रोग्राफ क्या होगा? 40 प्लस बेस फ्लो। बेस फ्लो क्या दिया हुआ है? 20, सो 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट। वंस अगेन इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स कि आपको इस क्वेश्चन समझ में नहीं आया, इस सॉल्यूशन को समझ में नहीं आया। विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो एड्रेसिंग योर क्वेश्चन, राइट। सो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन समझ में नहीं आया, इफ यू फाउंड एनी query, any doubt, anything that you are not understanding, please write in the comment box. हम लोग उसका solution को लेके will create a different video if necessary, or definitely we are going to respond to your comment, right? So let's go to the next question. What they're saying, there is a same type questions, I think is given, ठीक है। previously जो question था the same, 2 घंटे का यूनिट हाइड्रोग्राफ हुआ है। They're asking कि पूरा यूनिट हाइड्रोग्राफ is catchment at the time 3 hours. So 0 to 3 यहाँ पे it is given to you. 0 to 3 is given. The question is what will be the hydrograph at duration 3 hours. Duration 3 hours means यहाँ पे 0, 1, 2 है ना। तो ये जो 3 आवर है, 3 आवर में यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है पीक का वैल्यू क्या होगा? दिस इज द
क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इट इज एग्जैक्टली द सेम। क्या करना है, यूनिट हाइड्रोग्राफ को आप लैग करो। 2 घंटे का दिया हुआ है, 4 घंटे का चाहिए, कितने आवर से लैग करना है, 2 घंटे से लैग करना है। लैग करो इसको। लैग, इफ यू लैग इट यू विल सी द वैल्यू विल बी 25 plus 12, 30. So it will be, sorry, you have to lag it by 2 hours, so it will be 25 plus 5. It will be 25 plus 5, so 30 जो है that is for 2 centimeter of rainfall, 30 divided by 2, है ना, so the value will be 15. So देखिए इतना आसान है ये, you can solve it without without even touching the pen. So this question I'm not solving, this is your home task, please solve the questions, I have just given you the hint. आप सॉल्व कीजिए एंड प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स की whether you are getting the similar answer, and the answer will be 15 meter cube per second. Like always, if you are being, अगर हम लोगों का जो एफर्ट है हेल्पिंग, प्लीज डू, एक लाइक ही चाहिए हमें और आपका एक सब्सक्रिप्शन ही चाहिए हमें। सी ये इफ वी गेट योर लाइक्स एंड सब्सक्रिप्शन तो हम लोगों को भी ये एफर्ट कंटिन्यू रखने के लिए, एंड हाइड्रोलॉजी के बाद विल टेक अदर सब्जेक्ट्स, विल टेक सब्जेक्ट्स लाइक जियोटेक फर्स्ट, क्योंकि जियोटेक से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए एज यू सी वी जस्ट नीड योर इंटरेस्ट फ्रॉम योर साइड, कि अगर हमें लगता है कि वी हैव आवर व्यूअर्स, कि कुछ लोग हैं जिनके लिए ये मैटर करता है कि हम लोग जो क्वेश्चन बना रहे हैं, सोल्यूशंस बना रहे हैं, ये मैटर करता है आपके लिए, तो हमें भी इंटरेस्ट मिलता है ये करने का। और अगर आप लोगों के साइड से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो हम भी अपना इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, राइट। आप क्वेश्चंस कीजिए कि आपको व्हाट यू नीड, आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, व्हाट द कॉन्सेप्ट्स दैट वी आर ऑलवेज सेइंग, कि अगर आपको स्पेसिफिक कोई टॉपिक समझना है तो प्लीज लेट अस नो, विल एड्रेस whatever whatever topic you say, or whatever topic wherever you are facing the problem. In return, we just need support from you. Just share our video with your friends, like our video, comment to our videos, and kindly do subscribe to our channel. All the best for your exams. Prepare well, and we'll see you in the next video. Thank you so much.